हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी दिल्ली का ये सीरीज़ ऑन ओसीडी ट्रीटमेंट एंड हीलिंग। आज का जो विषय है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद ओसीडी फियर्स एंड एनी नेगेटिव थॉट्स फॉर दैट मैटर. So you need to understand one thing, that anxiety is one of the key ingredients of OCD. All right, obsessive compulsive disorder, it actually stays in your mind. It keeps you entangled in this whole series, in this loop, because of that one secret ingredient, that is anxiety. जब आपको thought आता है, it gets triggered from somewhere, उसके बाद आप compulsion करते हो, right? But if we trace it back in a reverse manner, that what makes us do the compulsion, what is that main ingredient which forces us? Compulsion का मतलब क्या है? Compulsion means that I am forced to do something which I don't want to. So who is forcing me? A thought? That's a wrong misconception. Thought is not forcing you. Why I'm telling you that? I'll give you an example. Suppose I tell you that this mobile में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वट एवर द मोबाइल और लैपटॉप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन, राइट नाउ आई एम गिविंग यू अ थॉट, थ्रो इट अवे. थ्रो इट अवे. आर यू एबल टू डू दैट? आई एम श्योर यू आर नॉट एबल टू डू दैट एंड यू वोंट डू इट. सो बेसिकली योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स वेरी वेल एंड लॉजिकली what action needs to be taken and what is not required by you in this moment. All right, it's not the fault of the thought actually where you are struggling. हमें आज तक क्या लगता है? थॉट हमारा दुश्मन है. बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ थॉट दुश्मन ही नहीं है? थॉट तो मैंने आपको अभी दिया, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग ऑन दैट. या मैं अगर आपको एक और थॉट दूँ दैट यू लुक मोर हैंडसम देन शाहरुख खान और यू आर मोर रिचर देन अंबानी, यू विल जस्ट लाफ आउट, राइट? यू विल नॉट टेक इट सीरियसली, यू विल नॉट टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन दैट, है ना? इससे समझ में आता है, दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द थॉट्स आर नॉट द रियल प्रॉब्लम, बट देन व्हाट फोर्सेस अस टू टेक दिस कंपल्शन, दिस एक्शन? And that secret thing is anxiety. Anxiety I talked about in the earlier videos. If you haven't watched it, please go and watch that out. Anxiety can be anything which creates uneasiness within you, uneasy state. Okay, it doesn't just mean that fear or shivering or just हमेशा डर डर में घूमना, घबराहट and all of that. No, it can be any uneasy feeling. Disgust हो सकता है, it can be guilt, it can be anger, irritation, irritability, annoyance. Any uneasy feeling is called anxiety. All right. So जब भी मैं anxiety बोलता हूँ, consider I'm talking about all of that. Now when we talk about anxiety, most of the people fear. Okay, and this is one of the important part of my therapy programs, that anxiety को कैसे tackle करें. Thought आता है. If anxiety doesn't happen because you fear the anxiety most, you fear that sir anxiety होगी, how will I handle that, how should I handle that, you're fearful. आज भी इस मोमेंट पे आप अपने आप से पूछना that are you fearful that you may have anxiety? फिर से दिक्कत होगी, फिर से anxiety होगी, फिर से you will feel uneasiness and all that, you know, strangled feeling वो आपके अंदर होगी, वही palpitation, sweating and all of that, right? Sweating and mouth dry हो जाना, sensations in the body, all of that, right? अभी इस वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो दैट इफ़ यू आर स्टिल इन दिस मोमेंट, आपको चाहे ओसीडी नहीं हो रहा बट यू आर फियरफुल कि वो वापस ना हो जाए, वो स्टेट पे नहीं जाना चाहते आप. एंड द आंसर इज येस. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. सो एंग्जाइटी के बारे में आज कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे एंड इफ़ यू लर्न देम यू आर गोइंग टू डेफिनेटली बी वेरी मच ओके विद एंग्जाइटी. ऑलराइट, एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट इज anxiety is a normal response. It means that your brain is giving you a warning, a cautious signal. Alright, not every cautious signal means that there is something wrong. Alert का मतलब ये नहीं कुछ गलत ही हुआ है. Alright, there can be multiple alerts in our life, right? You know, my microwave is, you know, giving some sound, beep beep beep. Doesn't mean कुछ wrong हो रहा है. It just says I need your attention. Alright, अटेंशन की रिक्वायरमेंट है. जब आपके मोबाइल में मैसेज आता है, देयर इज एन अलार्म, और मे बी इन द मॉर्निंग यू नो वी ऑल सेट दैट अलार्म इन द मॉर्निंग. इट डजंट मीन समथिंग इज रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट थिंग इज रिक्वायरिंग योर अटेंशन. ओके, इतना ही है बस. इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. एंड क्यों होता है? एंग्जाइटी हमारा बहुत ही प्यारा इमोशन है, बिकॉज इफ इट डजंट हैपन you are not able to survive this world. I will not be able to survive this world because it prepare our body and mind to fight and flight majorly. Okay, sometimes freeze and fawn also, but fight and flight याद रखना. Either you want to fight the danger or you want to flight, means run away from the danger. It wants to save you, but saving के लिए
वार्निंग सिग्नल है. इट नॉट नेसेसरली मीन कि आपको लड़ाई करनी ही है. इट्स जस्ट प्रिपेयरिंग यू. इट्स अ प्रीकर्सर. ओके, बिहेवियर आप बाद में लोगे. ओके, बिहेवियर लेना है नहीं, यू हैव टू डिसाइड. लॉजिकली यू हैव टू डिसाइड. बट एंग्जाइटी आया और आप भाग गए विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, विदाउट इवन हैविंग एनी नॉलेज ऑफ कि क्या हो रहा है, विदाउट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देन यू आर गोइंग टू टेक अ मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा अलार्म, जो फायर अलार्म है घर में, वो मैल फंक्शन कर रहा है, कभी ख़राब हो गया, बज रहा है अलार्म. मैं एकदम से ही जाके सारे वाटर होजेस खोल दूं, सारा बाल्टी से पानी फेंक दूं या फायर ब्रिगेड को कॉल कर दूं. दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क, राइट. पहले मुझे देखना होगा व्हाट्स रॉन्ग, हो क्या रहा है, राइट. एंड देन लॉजिकली, सपोज कि कुछ भी नहीं था वहाँ पर, इट वॉज जस्ट अ फॉल्स अलार्म, शायद ख़राब हो गया अलार्म, सो देन आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. But in your case, in your OCD and negative thought, when this alarm rings, instead of going there, instead of looking at it, you just go and take the action, right? और आपको बार बार इसी साइकिल में आप फंस जाते हो. फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, कुछ नहीं, इट्स अ वार्निंग साइन. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर. लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर एंग्जाइटी जब होती है, द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. ये जो मेरी धड़कनें बढ़ रही है, स्वेटिंग हो रही है, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एंड लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे उनको कार्डियोफोबिया भी हो जाता है. उनको लगता है दैट आई एम प्रोबेबली हैविंग अ हार्ट अटैक और समथिंग. इट्स नॉट द केस. यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. बेसिक चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको. सपोज अब तुम्हारे ब्रेन को एक अलर्ट सिग्नल मिल गया है, ठीक है, एक अलर्ट सिग्नल मिल गया दैट देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग. अब आप कोई लेजीनेस में गाना गुनगुनाते हुए तो डेंजर को टैकल करोगे नहीं. आपके ब्रेन को आपको प्रिपरेशन के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना. अगर कुछ होगा भी तो यू हैव टू फाइट एंड फ्लाइट. उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आती है ब्लड पंप से, राइट. जब आप वॉरियर्स को देखते हो या आप कोई बॉडी बिल्डिंग करते हो या आप कहीं जाते हो रनिंग पे, तो आपके मसल्स में पंप होता है ब्लड, राइट. अभी ब्लड पंप कहाँ से होगा? ब्लड पंप के लिए एक बहुत ही सिंपल लिंक को समझो आप. हम जब कोई खतरे की घंटी आती है तो हमारी जो सांसें हैं ना, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सिंपैथेटिक में शिफ्ट हो जाता है, विच मीन्स हमारी सांसें जो होती हैं वो शॉर्टर हो जाती हैं. आपको पता नहीं लगेगा, बहुत ही सटल वो है ये मैकेनिज्म. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एक ऐसी ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मान लो ये प्रोसेस चल रहा है, तो एंग्जाइटी के टाइम पर जब मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल देगा तो ब्रीदिंग ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी. मैं एग्जैजरेटेड दिखा रहा हूँ बट समटाइम्स आई मीन इट्स समथिंग लाइक दैट. शॉर्ट ब्रेथ. शॉर्ट ब्रेथ मीन्स लेस ऑक्सीजन इनसाइड योर बॉडी, राइट. लेस ऑक्सीजन मीन्स व्हाट? लेस ऑक्सीजन मीन ज़्यादा हार्ट को पंप करना है ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन सारे मसल्स में भेजनी है ना, तो और पंप करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा. नाउ व्हेन द हार्ट इज पंपिंग द ब्लड एंड सेंडिंग इट टू मसल्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट, बॉडी गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, तो हीटअप को कूल डाउन कैसे करेगा? स्वेटिंग. बॉडी विल स्वेट इट आउट. स्वेटिंग होगी तो आपको ये सब चीज़ें, ड्राई थ्रोट होगा, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया, रेस्टिंग में नहीं हो अब आपको फाइट करनी है, तो फाइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है बॉडी, एंड दैट इज हाउ इट गोज. नाउ ये सिमिलर सिम्टम्स किसी भी इंसान को हो सकते हैं अगर वो 1 किलोमीटर रनिंग करके आए तो भी, राइट. इसमें कोई डेंजर की बात नहीं है. वो 1 किलोमीटर रन करके आया, उसकी बॉडी को वहाँ भी एनर्जी चाहिए और आपको भी फाइट एंड फ्लाइट के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेम सिम्टम्स आपको भी हो रहे हैं. लेकिन जब कोई इंसान 1 किलोमीटर रन करके आता है तो क्या आप डरते हो कि अरे तुम्हें तो स्वेटिंग हो रही है, तुम्हें तो, यू से इट्स अ गुड वर्कआउट, इट्स अ स्पोर्ट्स पर्सन, राइट. कोई फर्क नहीं पड़ता. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं क्रिकेट मैचेस, रोनाल्डो जब खेलते हैं अपना सॉकर मैचेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मसल्स को एनर्जी चाहिए और एक पर्पसफुल एक्ट के लिए एनर्जी बना रही है बॉडी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आप घर बैठे हो और बैठे बैठे ये हो रहा है तो आपको लगेगा, यहाँ तो ब्रेन को क्या लगेगा, पर्पस तो है नहीं, कुछ सॉल्व तो कुछ हो नहीं रहा है इससे, लेकिन अपने आप को मैं रेडी करके बैठा हूँ, क्या करूँ इस एनर्जी का, एनर्जी क्रिएट कर दी उसने. सो दैट्स वाई you have to understand it, the symptoms in itself is not dangerous at all. अच्छा, शेकीनेस और डिजीनेस भी कई बार आपको एंग्जाइटी में महसूस होती होगी, तो उसको भी आप कंफ्यूज मत करिए कि आपको चक्कर आ रहे हैं. एक्चुअली क्या है, एड्रेनलिन रश हो जाता है आपके अंदर, राइट. जब आपको एड्रेनलिन रश होता है ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी जिटरी हो गई हैं. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, दैट योर ब्रेन इज ओवर एस्टिमेटिंग द थ्रेट. अब होता क्या है कि ब्रेन को किसी भी क्यू में अगर सेंस आता है, थ्रेट कहीं भी सेंस होता है, तो वो ओवरली कॉन्शियस हो जाएगा, वो फाइट फ्लाइट एक्टिवेट कर देगा, हार्ट बीट एंड एवरीथिंग विल बी, मसल्स में ब्लड पंप कर देगा फाइट एंड फ्लाइट के लिए. तो समझ गए हम. लेकिन ब्रेन की एक प्रॉब्लम ये है कि उसको, उसका काम है आपको सर्वाइव करवाना. इट्स वर्क इज जस्ट टू मेक यू सर्वाइव, आपको बचाना. तो वो ना रिस्क नहीं लेता किसी भी चीज़ में. वो ये नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है, वो जस्ट आपको प्रिपेयर कर देगा, आपकी एनर्जी सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर वो सेंड कर देगा. अब इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ रियल डेंजर और इट्स अ परसीव्ड डेंजर. एक्चुअल में कुछ हुआ है या दिमाग में कुछ हुआ है, सिनेरियो क्रिएट, ये वो इतनी जल्दी से भाप नहीं पाता, इतनी जल्दी वो कॉशियसली अपने लॉजिक से देख नहीं पाता. अब होता क्या है, जैसे ही ये चीज़ होगी, आपका बॉडी प्रिपेयर हो गया, एनर्जी आ गई, उसको लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर गड़बड़ कुछ हो नहीं रही है. तो हाउ विल यू गिव इट
a signal back that there is no danger by affirmations, but telling your brain through your body, all is well, all is well, everything is fine. But talking back to it by relaxing your muscles, by just lying down, you have to do those actions which will give a signal back to the brain that everything is normal. ब्रेन से बात शब्दों में कम होती है, एक्शंस में ज़्यादा होती है. तो समझ लो कि आपका ब्रेन आपको देखेगा अब कि मैंने एनर्जी दे दी, अभी क्या करेगा इस एनर्जी का. सो ईदर यू जस्ट रिलैक्स एंड रिलीज द एनर्जी, और इधर यू यूटिलाइज इट इन समथिंग. लोग कहते हैं पुशअप कर लो, मैं भी कहता हूँ पुशअप कर लो, सिटअप्स कर लो, रनिंग पर चले जाओ, जस्ट रिलीज दैट एनर्जी. ओके, तो सम हाउ यू हैव टू डू दैट. ये आपको अपने ब्रेन को बताना है दैट सिचुएशन इज नॉन डेंजरस. इसके बाद हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं सर ये चलता ही रहता है, दिस सिलसिला गोज ऑन, द एंग्जाइटी गोज ऑन, विच एक्चुअली साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली नॉट वेरी ट्रू. Anxiety symptoms are emotional signals and emotional signals are always temporary. There is no case in the world जहाँ आप देखोगे कि happiness चलता ही गया, sadness चलता ही गया. The intensity has to decrease with time. So these symptoms of anxiety will also pass, but it will take 20 to 30 minutes, somewhere around that. It's a scientific number. और इतने देर में आपको ना बैठना है, because you start doing something, you start running here and there. That's why it keeps continuing. उसको लगता है कुछ तो हो ही रहा है. But if you relax, if you just observe कि okay, anxiety is peaking, anxiety is coming down, just be like a curious scientist and observe them, and that's all. Just be relaxed. Maybe stare at a blank wall, put a dot on a wall and just stare at that. Get your brain become bored. Okay, अगर ये हो गया तो आपका वो आराम से एपिसोड चला जाएगा. But in that 20-30 minutes, if you start becoming jittery and here and there you're running, then it will not work so well. अच्छा, दो तरीके की एंग्जाइटी. अगर आपको एक इंटरनल मेंटल एंग्जाइटी है, यू कैन सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड ब्रीथ, उससे भी चला जाएगा. इफ यू डीप ब्रीथ, फुल ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट कम होगा, पंप जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा न्यूट्रल, एंड इट विल गिव द रिवर्स सिग्नल दैट देयर इज नो नीड टू बिकम एंग्शियस. बट अगर आपको जिटरीनेस, रेस्टलेस वाली एंग्जाइटी होगी तो जंप करो, पुशअप्स करो, रनिंग पे जाओ, दैट वुड मेक यू बेटर. लोगों का एक और यहाँ पे आता है विच इज़ माई 5th पॉइंट कि क्या ये अनकंट्रोल ना हो जाए. I don't want to become uncontrollable, and which is again I'll tell you it's not the case. You can completely control this anxiety by breaking the loop. And breaking the loop, मैंने क्या क्या बताया लूप में क्या क्या है. आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, बॉडी की हीट बढ़ रही है, उसके बाद स्वेटिंग हो रही है, और फिर एड्रेनलिन बढ़ रहा है आपके अंदर, फाइटिंग का या फ्लाइट का वो एनर्जी आ रहा है. इस लूप को तोड़ने के लिए आपके कंट्रोल में इन सब में से एक ही चीज़ है. कैन यू गेस दैट? पॉज द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इस पूरे लिंक में क्या आपके कंट्रोल में है? ओके, इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, इट इज़ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज़ इन योर कंट्रोल. दैट्स वाई आप सुनोगे सबको बोलते हुए, इवन योगा में या कहीं पर, कि आप ब्रीदिंग करो. इफ़ यू काम डाउन योर ब्रीदिंग, इफ़ यू रिलैक्स योर सेल्फ, ब्रीदिंग स्लो हुई, फुल ऑक्सीजन गई, हार्ट काम हुआ तो बॉडी का हीट गया तो स्वेटिंग गई, स्वेटिंग गया तो वापस यू आर गोइंग टू गेट बैक इन टू द नॉर्मल स्टेट. दिस इज़ इन योर कंट्रोल. हाँ, कुछ और टेक्निक्स भी हैं एडवांस, जैसे कि स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर फेस, या फिर अपना एक आइस क्यूब को होल्ड कर लेना, या पुशअप्स कर लेना, या कहीं और अपनी एनर्जी निकाल देना, रनिंग पे चले जाना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन ऑल्सो हेल्प यू. नाउ, क्या एंग्जाइटी आपको हार्म करेगी? विल एंग्जाइटी लीड टू एनी हार्म और डैमेज? सो रिसर्चेस हमें बताती हैं कि ऐसा कोई इफेक्ट हमारे ब्रेन या बॉडी पे या हार्ट पे नहीं पड़ता एंग्जाइटी का जो आपको किसी कैटास्ट्रॉफिक चीज़ के अंदर लीड कर जाए. आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी वेल इक्विप्ड है एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सीधा सीधा सबूत है कि एंग्जाइटी से ही हम सर्वाइव करे हैं मिलियन ऑफ ईयर से. ह्यूमन प्रजाति, ह्यूमन रेस इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी. बिकॉज हम जब मिलियन ईयर पहले जंगल में रहते थे, अगर कोई टाइगर आ रहा और हमें एंग्जाइटी नहीं हो रही तो वी वुड हैव बीन किल्ड टिल नाउ. बट एंग्जाइटी की वजह से हम फाइट और फ्लाइट कर पाए, एंड दैट्स हाउ वी आर सर्वाइविंग. सो हमारी बॉडी एंड ब्रेन वेल इवॉल्व्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं इसको हैंडल करने के लिए. पूरी ऑर्गन्स इवॉल्व्ड हैं, एंड इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एक्चुअल ऑन योर फिजिकल बॉडी, ऑलराइट, और ऑन योर ऑर्गन्स. कुछ नहीं होने वाला है आपको, एक स्क्रैच भी नहीं आएगा आपको. रिफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स ऑल्सो इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक. होता क्या है, क्योंकि जब आपको एंग्जाइटी होती थी, पहले से होती आई होगी, तो आपके ब्रेन ने ना एंग्जाइटी के सिम्टम्स को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली लिंक कर दिया कि अब तो कुछ हो ही जाएगा, आप उससे डरने लग गए हो. सो वेन एवर द नेक्स्ट टाइम एंग्जाइटी सिम्टम स्टार्ट्स, आपको कुछ टेक्निक्स तो मैंने बताई दी इस वीडियो में, लेकिन आपको अपने आप को रिफ्रेम भी करना पड़ेगा. अच्छा, ये तो बस मेरा जो माइंड है रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, मुझे बस काम डाउन करना है, इसको रिवर्स सिग्नल देना है. आयुष सर ने क्या बताया था, रिलैक्स करना है बॉडी को, या अपनी एंग्जाइटी निकालनी है पुशअप या रनिंग में. तो ऐसे करके निकालना है. सो इट दीज सिम्टम्स इन इट सेल्फ, जैसे हार्ट का पैल्पिटेशन सबसे कॉमन है कि लोग इसको हार्ट अटैक या किसी से कंपेयर कर लेते हैं, दिमाग में लिंक हो जाता है. विच यू हैव टू टेल योर सेल्फ, रीफ्रेम, अफर्मेशन करना पड़ेगा कि नहीं कुछ नहीं है, ये बस ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, शायद ऑक्सीजन में कम ले रहा हूँ, तो लेट मी ब्रीथ मोर.
दैट्स हाउ यू टू रीफ्रेम। इसको ना तोड़ो छोटी छोटी चीज़ों में। पसीने आ रहे हैं आपको लग रहा है तो बोलो अरे ये तो कूल डाउन कर रही है बॉडी, मैं वैसे ही कूल डाउन हो जाता हूँ, चलो मैं रिलैक्स करके कूल डाउन कर लेता हूँ। अच्छा ये क्या गला सूख रहा है, अच्छा ज़्यादा एड्रेनलिन बन रहा है मेरा, चलो ठीक है आराम से बैठता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, आराम से करता हूँ। तो अपने आप को इस सिम्टम को कैटास्ट्रोफाइज मत करो, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना शुरू करो। एंड कुछ लास्ट की चीज़ें हैं जैसे ग्रेजुअल एक्सपोजर जो हम ERP थेरेपी में करते हैं। एंग्जाइटी ना जब आपको सिग्नल देती है आपके पास चॉइस होती है कि आप वहाँ से फाइट फ्लाइट करो या आप उसको लॉजिकली टैकल करो। जब आपको ट्रिगर हो जाते हो और एंग्जाइटी का सिग्नल आया आप हमेशा उसको अवॉइड करने की सोचते हो शायद, राइट। अवॉइड करने से क्या होता है, आपको लगता है अच्छा मैंने अवॉइड कर दिया मैं सेफ हो गया। एक्चुअली यू आर गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल बैक टू योर ब्रेन कि अवॉइड किया इसलिए सेफ हूँ, नहीं तो वहाँ कुछ हो जाता। Instead of that, now you have to expose yourself, expose your brain to that situation and let your brain know that वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं थी, there was nothing as dangerous as you were expecting it to be। और इसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पर या किसी अपने लव्ड वन पर कि वो भी ये कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट दैट आपको अपने आप को एम्पावर करना होगा, ये बार बार समझाकर कि मेरी बॉडी का एक रॉन्ग सिग्नल है, इससे कुछ होता नहीं है, इट्स हार्मलेस and it's just my brain overreacting to normal situations and I have to tell my brain back that there is no danger here. So I hope this video was helpful to you. If it was, leave a like, subscribe to the channel and leave a comment. At least give me a feedback कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो शेयर करिए अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जहाँ पे आपको लगता है they are dealing with anxiety or they feel that anxiety is making their life difficult. Keep supporting the channel, keep supporting my mission to help people overcoming their fears and their thoughts. एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर एंग्जाइटीज लाइक अ प्रो।